Hello children, let's begin with today's class in the subject Fundamentals of Nursing, and the topic which I am currently taking is care of the patient with fluid and electrolyte imbalance. Okay, so far I would like to remind you that we were discussing about, so far we already have discussed about what is fluid imbalance, then what is electrolyte imbalance, and then I was telling you that under the topic electrolyte imbalance, I did teach you in the last class about what is hyponatremia, what is hypernatremia. Okay, so today I will be starting with the topic hypokalemia. Under the electrolyte imbalance, I will be starting with the topic hypokalemia. So as I told you in the last class, if you remember, that the word kalemia indicates serum potassium level. Okay, serum potassium, that is indicated by the word kalemia, and here we are talking about hypokalemia. That means the serum potassium is less, that we are talking about. Okay, so hypokalemia. Now what is hypokalemia? Hypokalemia refers to the potassium deficit. Whenever there is potassium deficit in the extracellular fluid, that is known as hypokalemia. Okay, I have covered this topic or what? No, I have not. So yeah, where was I? Then so hypokalemia means because potassium is a part of extracellular fluid, so whenever there is deficient level of potassium in the extracellular fluid, it is known as hypokalemia. Okay, and when this potassium, because potassium hamara, like I always give example of this as a cell, and like this is the intracellular space and this is the extracellular space. So potassium is a part of extracellular fluid. So when this extracellular potassium gets डेफिसिट, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम कम हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम हमारा कम हो गया तो इसके अंदर से जो है वो, बिकॉज यहाँ पे कम हो गया अगर, तो देन इट इज नॉट आइसोटोनिक. एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर तब आइसोटोनिक नहीं रह गए, तो उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए, आइसोटोनिसिटी फ्लूइड्स को आइसोटोनिक बनाने के लिए देन व्हाट हैपेंस, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी इफ यू रिमेम्बर, कि अगर किसी जगह पे सोडियम की कमी हो जाती है या अगर किसी जगह से सोडियम निकलने लग जाता है तो बॉडी क्या करती है, पोटेशियम को रोकने लग जाती है टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ सोडियम. एक और चीज मैंने बताई थी इसी की वाइसी वर्सा, कि अगर किसी जगह से पोटेशियम ज्यादा निकल जाएगा तो उस जगह पे सोडियम आ करके उस जगह को कवर करेगा टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ पोटेशियम. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो पोटेशियम लॉस हो गया, पोटेशियम डेफिशिएंट हो गया, तो सेल्स के अंदर जितना भी सोडियम है, दैट सोडियम एंड हाइड्रोजन आयंस दैट विल स्टार्ट टू मूव इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस. फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस द सोडियम एंड द हाइड्रोजन आयंस विल स्टार्ट शिफ्टिंग इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ पोटेशियम और फ्लूइड्स की आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने के लिए. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल्स के अंदर पे अभी सोडियम और हाइड्रोजन आयंस जो है वो कम हो जाएंगे. ओके, सो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे हैं, जो विद इन द सेल्स, सेल के अंदर से सोडियम और हाइड्रोजन आयंस निकल गए तो सेल के अंदर जो हमारी सेलुलर फंक्शंस थे वो भी अफेक्ट होंगे. सेल का जो पीएच था, दैट पीएच विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. Okay, so all that happens when a person undergoes hypokalemia. Okay, so mainly hypokalemia के केसेस में जो मसल सिम्टम्स है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं. लाइक देयर कैन बी मस्कुलर वीकनेस, देयर कैन बी लेग क्रैम्प्स, देयर कैन बी मेंटल कंफ्यूजन्स एज वेल, एंड देन ऑल्सो देयर कैन बी पैरालिसिस. तो मस्कुलर जो सिम्टम्स हैं, मसल से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, वो ज़्यादा इट विल बी प्रेजेंट व्हेन अ पर्सन इज हैविंग hypokalemia. Now, the major symptoms of hypokalemia are a person who is suffering from hypokalemia will be possessing the symptoms or will be showing the symptoms like fatigue. There will be fatigue. Fatigue means tiredness.
The person will be fatigued, there will be anorexia, nausea, vomiting, and as I said, muscle symptoms, so muscle weakness will be there. Cardiac arrhythmias will be there, the cardiac rhythm will not be proper. Cardiac arrhythmias will be there. Then also there will be decreased bowel motility. बाल मोटिलिटी भी डिक्रीज होगी क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइनल मसल्स हैं दोज विल ऑल्सो गेट वीकन. तो क्योंकि मस्कुलर सिम्टम्स ज़्यादा है तो मस्कुलर जो इंटेस्टाइनल जो मसल्स हैं दोज विल ऑल्सो गेट वीकन. सो बाल मोटिलिटी हमारा जो है दैट विल ऑल्सो बी डिक्रीज. देन ऑल्सो इट कैन लीड टू टेंडर मसल्स. द मसल्स विल बी वेरी टेंडर, वेरी रिजिड एंड स्टिफ, यू कैन से स्टिफ. सो मसल स्टिफनिंग कैन बी देयर. हाइपोग्लाइसीमिया में अगर किसी पर्सन को माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया है तो सीरम पोटेशियम लेवल विल बी बिलो 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होगा पेशेंट का पोटेशियम लेवल इफ द पर्सन इज हैविंग हाइपोकैलेमिया. ओके, सो दिस कैन हैपन. Then the other symptoms can be patient में ECG changes होंगे. ECG changes will be there, electrocardiogram changes will be there. Then also there can be muscle tender muscles. I told you this. Okay. Then treatment हमारा क्या है? हाइपोकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या है? जिस भी रीजन से हाइपोकैलेमिया हो रहा है that reason should be treated to treat the condition hypokalaemia. Because of whatever underlying cause hypokalemia is happening, if we will work over that cause, over that reason which is leading to hypokalemia, then hypokalemia can be treated. जिस रीजन की वजह से हो रहा है उस कॉज को ट्रीट करेंगे अगर तो हाइपोकैलेमिया भी ट्रीट हो जाएगा. ओके, नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द पेशेंट हु इज लैंडिंग अप इनटू हाइपोकैलेमिया. जिस पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो रहा है उस पेशेंट का हमें वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो रहा है या पेशेंट को हाइपोकैलेमिया फ्यूचर में हो सकता है या पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है. सो वी हैव टू प्रॉपरली असेस द पेशेंट फॉर दैट. देन वी कैन ऑल्सो मेजर कि पेशेंट को किस डिग्री तक हाइपोकैलेमिया है. 3.5 जैसे 3.5 to 4.5 इज द रेंज. सो 3.5 से कम तो नहीं है. सो पेशेंट को हमें असेस करना है फॉर द रेंज ऑफ द पोटेशियम इन द बॉडी और फॉर द लेवल ऑफ पोटेशियम और सीरम पोटेशियम. ओके, पेशेंट को एक्स्ट्रा पोटेशियम लेने के लिए बोलना है थ्रू ओरल इनटेक. इन द डाइट ऑल्सो द पेशेंट कैन इंक्रीज द इनटेक ऑफ पोटेशियम. सो पेशेंट को एक्स्ट्रा पोटेशियम लेने के लिए बोलना है. देन पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं. ओरली पेशेंट को पोटेशियम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं. So all these things can be given. Okay, all these things can be done. This was about the condition hypokalemia. Now the next is hyperkalemia. Potassium ज़्यादा है. Hyperkalemia basically refers to an excess of potassium in the extracellular fluid. जब extracellular fluid में ECF में potassium excessive होगा, that is known as hyperkalemia. Mainly it is characterized by the conduction defect in the heart. अगर बॉडी में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम दिखाई देगा. हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या है दैट वी विल स्टडी इन सेकेंड. ओके, हार्ट कैसे इम्पल्सेस को कैसे जो हार्ट है वो कैसे बीट करता है, कैसे जो इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट होती है, ऐसे नोड एवी नोड ऑल दैट. डू नॉट नीड टू वरी. हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या है दैट वी विल स्टडी इन सेकेंड. दैट इज नॉट द टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन फंडामेंटल्स राइट नाउ. ओके, सो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो है उस पर मेनली इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है. दैट मेनली affects the conduction system of the heart, hyperkalemia. Then main characteristics क्या क्या होंगे? Muscular weakness will be there. Hyperkalemia, hypokalemia दोनों में muscular symptoms हमें दिखाई देंगे. So muscular weakness can be there. Cardiac arrhythmias, जैसे मैंने बताया conduction system भी हमारा affect हो रहा है. So cardiac arrhythmias can happen. Bradycardia can happen. Heart block भी हो सकता है. Then paralysis can also happen. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हो सकते हैं. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे कि नोजिया हो गया हमारा. देन डायरिया कैन हैपन.
So nausea, vomiting, diarrhea, these can happen in the gastrointestinal symptoms. Then patient के sorry. So ECG changes can happen in both the hyperkalemia and hypokalemia. So और सीरम पोटेशियम लेवल हमारा जो है वो 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा होगा. 3.5 to 4.5 is the normal range. 3.5 to 4.5. 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, then that is a condition which needs proper attention. Okay. So 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा जो सीरम पोटेशियम लेवल होगा, it will be there. Metabolic acidosis can be happening. Respiratory acidosis भी हो सकता है. Okay. This again you will be studying in depth. Okay. अभी से उसके लिए पैनिक मत होना. So then nursing interventions, ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट को जिस रीज़न की वजह से हाइपरकेलीमिया हो रहा है, दैट रीज़न कैन बी ट्रीटेड. पेशेंट को एक्स्ट्रा पोटेशियम लेने से हमें रोकना है. दिस कैन बी डन. देन अगर पेशेंट को वाटर लॉस हुआ है किसी रीज़न की वजह से, तो हमें पेशेंट को वही वाटर रिप्लेसमेंट करना है. ओके. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर किसी रीज़न की वजह से हुआ है, डायरिया या फिर बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, तो दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली treated. Okay. So now the next is interventions, nursing interventions. Nursing intervention में again the very first thing which we will do is हमें देखना है पेशेंट को that whether the patient is already hyperkalemic से word बना है hyperkalemic. So we have to see that whether the patient already is hyperkalemic or whether the patient is potential to have hyperkalemia, और whether मतलब पेशेंट को अभी hyperkalemia है या फ्यूचर में हो सकता है सॉरी, या फिर पेशेंट को फ्यूचर में हो सकता है, या फिर पेशेंट को ऑलरेडी माइल्ड हाइपरकेलेमिया है, या फिर किस डिग्री तक का हाइपरकेलेमिया है. ऑल दैट वी हैव टू असेस. देन वी हैव टू चेक कि पेशेंट को किस डिग्री तक का हाइपरकेलेमिया है. देन पेशेंट को अगर हम पोटेशियम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रॉपर हमें विजिलेंट रहना चाहिए कि पेशेंट का पोटेशियम लेवल कितना है, कौन सा फ्लूइड हम पेशेंट को देंगे तो पेशेंट को ज़्यादा पोटेशियम तो नहीं मिल रहा उससे. द डाइट विच वी आर गिविंग टू द पेशेंट वी शुड बी विजिलेंट अबाउट. इट शुड नॉट बी रिच इन पोटेशियम. सो ऑल दैट वी हैव टू सी. अगर पेशेंट खुद से पोटेशियम सप्लीमेंट्स लेता है, अगर पेशेंट कोई ऐसे सप्लीमेंट लेता है जिसकी वजह से उसे पोटेशियम भी ज़्यादा मिल रहा है, so that also has to be properly taken care. All these things will be properly taken care. Okay. और पेशेंट को ऐसी चीज़ें लेने के लिए मना करना है जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है. लाइक देयर आर सम थिंग्स इन विच पोटेशियम इज टू मच. होल ग्रेन ब्रेड में पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो नहीं लेना है. बनानाज में पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो नहीं लेना है. फ्रूट्स में. देन ड्राइड बीन्स में पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, दैट ऑल्सो शुड नॉट बी टेकन. ड्राई फ्रूट्स में पोटेशियम ज़्यादा है तो वो भी नहीं लेना होता है. टी, कॉफ़ी, cocoa, all these are rich in potassium, so all these things are to be restricted as per doctor's recommendation and doctor's prescription. Okay, so this was about hyperkalemia. Now the next is hypocalcemia. Hypocalcemia, I told you what is calcemia. Calcemia is when we are talking about the serum calcium. सीरम कैल्शियम के बारे में जब हम बात करते हैं, दैट इज नोन एज कैल्सीमिया. एंड हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम कम है, हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा है. ओके. सो हाइपोकैल्सीमिया, व्हाट मेनली हाइपोकैल्सीमिया इज व्हेन देयर इज डिक्रीज्ड और डेफिसिट कैल्शियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. whenever there is a calcium deficit in the extracellular fluid, it is known as hypocalcemia. Okay. So अगर हाइपोकैल्सीमिया बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रीट ना किया जाए, इफ़ अ पर्सन हु इज़ हैविंग हाइपोकैल्सीमिया, बहुत टाइम तक अगर हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट ना किया जाए, तो बॉडी में तो कैल्शियम ऑलरेडी कम है और हमने कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं लिया पेशेंट के लिए. सो बहुत लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम कम है, बॉडी को कैल्शियम कहीं से तो चाहिए ही. सो बॉडी क्या करेगी? इट विल स्टार्ट टू टेक कैल्शियम फ्रॉम द bones. Okay, body will start to take the calcium from the bones. बोन से जब कैल्शियम ज़्यादा निकलने लग जाएगा, when the calcium will be withdrawn from the bones, so what will happen?
बोन्स आपके जो है बोन्स में प्रॉपर रिजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा एंड द बोन्स विल स्टार्ट टू गेट वीकन, बोन्स जो है वो वीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, आई विल बी रिपीटिंग माई सेल्फ। हाइपोकैल्सीमिया मीन्स व्हेनेवर देयर इज डेफिसिट ऑफ कैल्शियम इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम कम होगा उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। अगर कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन को बहुत ज़्यादा टाइम तक अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, सो बॉडी में कैल्शियम कम है, उसे कैल्शियम कहीं से तो चाहिए, तो बोन्स में कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए बॉडी क्या करेगी, बोन्स से कैल्शियम लेना शुरू कर देगी। जब बोन्स से कैल्शियम लेगी टू कॉम्पनसेट द डेफिसिट कैल्शियम, तो बोन्स से जब कैल्शियम निकलने लग जाएगा, बोन्स को भी तो कैल्शियम की जरूरत है टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर द प्रॉपर रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन हीलिंग के लिए, बोन के रिजॉर्प्शन के लिए, बोन फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम इज रिक्वायर्ड। बट बोन्स में जब कैल्शियम रहेगा ही नहीं, सो बोन्स भी जो है दोज विल गेट वीकन, सो बोन्स में जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होने के चांसेस है। और इट कैन ऑल्सो लीड टू अ कंडीशन नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है इसकी वजह से। ऑस्टियोमलेशिया हमारा क्या होता है, और ऑस्टियोमलेशिया व्हाटएवर यू वांट टू से, इट इज बेसिकली ऑस्टियोमलेशिया। So osteomalacia is a condition in which the bones will get weakened and it will also be very prone to have fractures very often, बहुत जल्दी जल्दी fractures हो सकते हैं, okay। So the main symptom or the main indication for a person to have hypocalcemia is, जिस इंसान को hypocalcemia रहेगा उसमें the major common symptom which can be seen is not the major, the common symptom, मेजर नहीं, कॉमन सिम्टम जो है दैट कैन बी फिंगर्स, दे विल ऑलवेज बी अ टिंगलिंग सेंसेशन इन द फिंगर्स। फिंगर्स में हमेशा टिंगलिंग सेंसेशन होगी, ऐसा लगेगा जैसे फिंगर्स में गुदगुदी सी हो रही है, खुजली सी हो रही है ऑलवेज। सो देयर विल ऑलवेज बी अ टिंगलिंग सेंसेशन, देयर ऑल्सो कैन बी अ नम्बनेस, फिंगर्स सुन लगेंगे और साथ में लगेगा कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है कुछ फिंगर्स में, ओके। इट कैन ऑल्सो लीड टू मसल क्रैम्प्स। Muscle cramps are also the symptom for the sign for the hypocalcemia, not the symptom, sign, okay। So और वैसे इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं हाइपोकैल्सीमिया के, पहले मैंने कुछ आपको बता दिया, दैट इज मसल वीकनेस कैन बी देयर और the fingers will be having a tingling sensation and also it will be numb। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, numbness and tingling sensation as I told you, then muscle cramps, okay। muscle cramps हमारा जो है that is also one of the symptom। muscle weakness नहीं है बेटा, muscle cramps है, okay। so muscle cramps are also one of the symptoms। then it can also lead to the mental changes, confusion हो सकता है पेशेंट को, mental changes हो सकता है, memory में और mood में alteration हो सकता है। mood में in the sense कभी कभी पेशेंट अचानक से सही था, अचानक से पेशेंट इरिटेटिव हो गया, so it can also lead to changes in the mood or it can also lead to mental changes like changes in mood or the change in the not the change the alteration in the memory alterations भी हो सकते हैं, पेशेंट भूल जाएगा कि क्या काम कर रहा था या फिर किससे बात कर रहा था या फिर क्या चीज़ कर रहा था, so that can also lead to the memory alteration as well। convulsions हो सकते हैं पेशेंट को, convulsions 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 हो सकते हैं पेशेंट को। convulsions मैंने कल बताया था आपको, convulsions I am repeating myself, see मैंने आपको कल दो चीज़ें बताई थी, convulsions and seizures if I remember, yeah। so convulsions हमारे क्या होते हैं, see seizures में मैंने आपको कल क्या बताया था, seizures हमारे uncontrolled electrical activity of the brain। what am I saying, seizures are the uncontrolled electrical activities of the brain, okay। seizures are uncontrolled activities, uncontrolled electrical activities, जो ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज, जो इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, ऑल दैट, ओके। सो ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, सो दैट लीड्स टू द अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज वेल। जब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इम्बैलेंस होगा या अनकंट्रोल्ड होगी, तो बॉडी के जो मूवमेंट है वो भी अनकंट्रोल्ड होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं सीजर्स, ओके। सो सीजर्स इफ वी डिफाइन इट, तो सीजर्स आर द सडन
sudden uncontrolled electrical activities of the brain which leads to uncontrolled movement of the body. Okay, uncontrolled activities of the body you can say. Convulsions हमारे क्या हो जाते हैं? See convulsions, what are now convulsions? Convulsions are the rapid muscle contractions and relaxations. When the muscles of the body, when the muscles are having rapid contraction and rapid relaxation, so that is known as convulsions. Okay. कन्वर्जेंस हमारे क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, दैट वी ऑल नो वेरी वेल. सो व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड द मसल रिलैक्सेशन, व्हेन दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन इज रैपिड, बहुत रैपिड, जब जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, सो एंड वो जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे जो मसल्स का है, दैट ऑल्सो लीड्स टू द अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी अगेन. It also leads to the uncontrolled movement of the body. It leads to the muscular cramps. So that is known as convulsions. ये मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल सॉर्ट ऑफ बता दिया है. डिटेल नहीं, ब्रीफली एक्चुअली मैंने बता दिया है इसके टाइप्स एंड all those things are there. But this also you do not need to panic. You will be studying all this in detail in medical surgical in second year. ओके. सो कन्वर्जेंस और सीजर्स का एक जनरल आइडिया यहाँ पे ले लो. इसको मेडिकल सर्जिकल में डिटेल में पढ़ोगे तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. डाउट्स में भी पूछोगे तो मैं डाउट्स में भी दोबारा इसी तरीके से समझाऊंगी जो मैंने यहाँ पे बताया है. सीजर्स क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की जब अनकंट्रोल्ड होती है उसको बोलते हैं सीजर्स. और ये कन्वर्जेंस हमारे क्या है? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत रैपिड और रिपीटेड हो रहा है, दैट इज convulsions. Okay, so that also leads to uncontrolled movement of the body. So हाँ, तो यहाँ पे पेशेंट को convulsions भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है कि पेशेंट को convulsions होंगे. So what will be the action which will be taken by the patient, not the patient, by the staff or by the nurse. Then अगर बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोकैल्सीमिया हो जाए, सो इसकी वजह से लेरेंजियल स्पाज्म भी हो सकता है. इफ अ पेशेंट इज हैविंग सीवियर हाइपोकैल्सीमिया, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू लेरेंजियल मसल स्पाज्म. जो लेरेंजियल मसल्स होती हैं वो स्पाज्म, वो भी दोज कैन ऑल्सो बी गेटिंग स्पाज्म. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स एंड द साइंस ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया. हाइपोकैल्सीमिया के केस में टोटल जो कैल्शियम लेवल होगा, इट विल बी बिलो 8.5 मिली इक्विवेलेंट पर mg/dl, नॉट मिली इक्विवेलेंट. द रेंज इज mg/dl. हाइपोकैल्सीमिया के केस में जो कैल्शियम की रेंज है, इट विल बी बिलो 8.5 mg/dl. ओके, एंड yeah, I think the major points I have already covered. So for the treatment what we can do, पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, पेशेंट को फॉस्फोरस सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, पेशेंट को कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी गिवन 2.52 to 3.78 ग्राम्स डेली. 2.52 to 3.78 ग्राम्स तक हम पेशेंट को कैल्शियम कार्बोनेट ओरली दे सकते हैं डेली. और अगर हम पेशेंट को कैल्शियम कार्बोनेट नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पे पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट भी दे सकते हैं. कैल्शियम ग्लूकोनेट लेकिन हमें कितना देना है? वी कैन गिव 0.5 to 1.5 ग्राम्स. 0.5 to 4.5 ग्राम्स तक कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं. कैल्शियम ग्लूकोनेट को लेकिन अगर हम दे रहे हैं तो हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है अलॉन्ग विद कैल्सीफेरॉल. कैल्सीफेरॉल के साथ में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं, जिसमें कि कैल्शियम ग्लूकोनेट कितना रहेगा? 0.5 to 1.5 ग्राम. एंड द कैल्सीफेरॉल विल बी 15.45 mg डेली. 15.45 mg डेली ओरली वी कैन गिव कैल्सीफेरॉल. बेटा जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें कैल्सीफेरॉल में यूनिट नहीं लिखी हुई है, 15.45 लिखा है सिर्फ. दैट 15.45 इज 15.45 mg. ठीक है, सो 15.45 mg डेली ओरली हम पेशेंट को कैल्सीफेरॉल दे सकते हैं अलॉन्ग विद कैल्शियम ग्लूकोनेट. इसके अलावा पेशेंट को हम दे सकते हैं 10 ml या फिर 10% तक कैल्शियम ग्लूकोनेट IV.
अभी जो पहले मैंने कैल्शियम ग्लूकोनेट मेंशन किया था वो ओरली था। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि आईवी अगर हम पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं, सो मतलब इंट्रावीनसली, सो देन इन दैट केस वी कैन एडमिनिस्टर 10 ml ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट और 10% ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट, ओके। देन या फिर इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मतलब इसके अलावा क्या, इसके साथ साथ वी कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग, दैट इज whatever is the underlying cause of hypocalcemia, उस underlying cause को treat करके we can treat hypocalcemia, okay। So this is the treatment for hypocalcemia। nursing interventions क्या क्या होंगे, वही सेम चीज जो very first thing which we are doing is we have to assess that whether the patient is having hypocalcemia, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया है या पेशेंट को पोटेंशियल है कि फ्यूचर में जाकर के पेशेंट को कुछ दिनों में हाइपोकैल्सीमिया या कुछ टाइम में पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, या फिर पेशेंट को ऑलरेडी माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया है। तो इस चीज़ के लिए प्रॉपर हमें पेशेंट को असेस करना है। देन अगर पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं सीजर्स के लिए वो हमें लेने हैं। सीजर्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, सब सेकेंड ईयर में आप पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है, तो पेशेंट को हमें पेशेंट के आसपास बेड में साइड रेल्स लगाने होते हैं। पेशेंट टंग बाइट ना करे, इसलिए पेशेंट के मुंह में हम टंग जो माउथ पीस कैन बी केप्ट सो दैट पेशेंट टंग बाइट ना करे, ओके। बहुत सारे देयर आर वेरियस थिंग्स विच यू विल बी स्टडिंग इन मेडिकल सर्जिकल, हियर आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल अबाउट दोज थिंग्स, ओके। सो सीजर्स के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होते हैं उसके लिए वी हैव टू बी रेडी कि अगर पेशेंट को अचानक से सीजर्स आ जाए तो हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट को आ जाए, हमने कोई तैयारी नहीं की थी, अब अचानक से हम ढूंढ रहे हैं कि पेशेंट के हाथ पैर बांधने हैं, वेयर इज दैट रिस्ट्रेन, हाउ टू रिस्ट्रेन एंड व्हाट टू यूज टू रिस्ट्रेन द पेशेंट। उस टाइम पे नो वी डोंट हैव टू रन दैट पर्टिकुलर टाइम। तब तक पेशेंट को आपने माउथ गैग लगाया नहीं, पेशेंट ने टंग बाइट भी कर लिया, पेशेंट ने हाथ पैर हिला के अपने हाथ पैर में चोट भी लगा ली। सो यू हैव टू बी already prepared for such things which can happen, okay। So yeah, these things can be done and जिसको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं बिकॉज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया या ऑस्टियोमलेशिया, उसको हमें बताना है व्हाट कैन बी द मेजर्स विच कैन बी टेकन बाय द पर्सन। साथ साथ में जिन लोगों को विद द पीपल हु आर एट हाई रिस्क टू हैव ऑस्टियोपोरोसिस, उनको हमें बताना है कि what preventive measures they can take, especially the post menopausal women, जो menopausal women है उनको हमें बताना होता है। Then also we have to tell the women regarding the women and the people whosoever is prone to have the bone deformities because of hypocalcemia, उन्हें हमें बताना है कि what is the importance of exercise, okay। क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो बोन लॉस है वो डिक्रीज हो जाएगा, so we have to tell about that, okay। So all these things all these measures can be taken. Now the next is hypercalcemia. That was about hypocalcemia. Now here we will be dealing with hypercalcemia. So what is hypercalcemia now? Hypercalcemia is the excess calcium. जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम ज्यादा है या एक्सेसिव है, दैट इज नोन एज हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया नॉर्मली अगर किसी पेशेंट में प्रेजेंट होगा तो वो बहुत माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया प्रेजेंट होगा, बट हाइपरकैल्सीमिया इज मेजरली इट इज सीन इन द इमरजेंसी केसेस, क्योंकि हाइपरकैल्सीमिया की वजह से इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया मेनली अगर हम किसी पेशेंट को देखेंगे बहुत अच्छा खासा हाइपरकैल्सीमिया है, सो दैट कैन ओनली बी द इमरजेंसी केसेस, क्योंकि उस केस में फिर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, ओके। सो इसमें कैल्शियम हमारा बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट होता है ECF में, एंड इट इज अकम्पनीड बाय द सिम्टम्स लाइक पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया इज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, जब यूरिन आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा है, दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया। या फिर द पैसेज ऑफ यूरिन very oftenly, or the frequency of the passage of the urine is too frequent, that is known as polyuria. Not the frequency, actually नहीं, polyuria में see what happens, there are two things, oligouria and polyuria.
जब यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है दैट इज नोन एज पॉलीयूरिया, दैट मीन्स इंक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट इज नोन एज पॉलीयूरिया, डिक्रीज्ड यूरिनरी आउटपुट इज नोन एज ओलिगोयूरिया. That I already have told you many times. Okay, so in the case of hypercalcemia what can happen? Polyuria will be there, polydipsia will be there. Polydipsia मतलब excessive thirst. So polyuria, polydipsia. Then skeletal muscles जो है that can be weakened. Skeletal muscle weakness can happen in the case of hypercalcemia, and hypertension can also happen. Hypertension, high BP can also be there. Now the symptoms for hypercalcemia are muscle weakness, ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया, muscle weakness हो सकता है, tiredness can be there, restlessness can be there, lethargy can be there, constipation, anorexia, nausea and vomiting can be there, decreased memory span, याद रखने की जो क्षमता, capacity to memorize things, वो मेमोरी स्पैन भी हमारा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. देन ऑल्सो इट कैन लीड टू डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन. किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं पे कर पाएगा द पर्सन हु इज हैविंग हाइपरकैल्सीमिया. इट कैन ऑल्सो लीड टू कन्फ्यूजन इन द सेंस बात करते करते या कुछ काम करते करते अचानक से पेशेंट विल बी फीलिंग नाउ व्हाट टू डू, एंड मैं क्या करने जा रहा था, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अचानक से इट विल बी ब्लैंक सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. ठीक है. पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. रीनल स्टोन्स, हाइपरकैल्सीमिया के केस में कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से इट कैन ऑल्सो लीड टू रीनल स्टोन्स. रीनल स्टोन्स मतलब किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं. ओके. देन इट कैन ऑल्सो लीड टू साइकोटिक बिहेवियर. इट कैन ऑल्सो लीड टू साइकोटिक बिहेवियर. देन कार्डियक अरेस्ट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स. ईसीजी हमारा जो है, ईसीजी विल बी, ईसीजी भी कभी कभी जो है वो, इट विल ऑल्सो भी, कभी कभी नहीं, ईसीजी विल ऑल्सो बी नॉट नॉर्मल. ईसीजी में मेनली, आपने ईसीजी वैसे अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, यू विल बी स्टडिंग. ईसीजी में मेनली जो क्यूटी इंटरवल है दैट विल बी शॉर्टेड. ओके, सो दिस हैपेंस. सीरम कैल्शियम विल बी ओवर 10.5 mg/dl. सीरम कैल्शियम जो है दैट विल बी ओवर 10.5 mg/dl. देन नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे क्या क्या हो सकते हैं? नर्सिंग इंटरवेंशन सबसे पहले हमें देखना है कि पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया है या नहीं, या फिर पेशेंट को चांसेस है कि पेशेंट को फ्यूचर में जाकर के हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है. क्लाइंट को हमें मोबिलाइज करना है. मोबिलाइज करने से क्या होगा, जो पेशेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिनरी आउटपुट जो है, जो यूरिन है, जो दैट यूरिन विल ऑल्सो नॉट बी स्टैटिक. स्टैसिस, यूरिनरी स्टैसिस नहीं होगा. ओके. आउटपुट जो पेशेंट का है दैट विल बी मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ मूवमेंट. देन पेशेंट को सफिशिएंट फ्लूइड्स लेने के लिए बोलना है ओरली. पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को इंकरेज करना है फ्लूइड्स लेने के लिए. देन पेशेंट को डिस्करेज करना है, क्योंकि कैल्शियम पेशेंट का ज़्यादा है तो पेशेंट को डिस्करेज करना है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कैल्शियम रिच है, यानी कि मिल्क नहीं लेना है. मिल्क प्रोडक्ट शुड नॉट बी टेकन बिकॉज दोज आर रिच इन कैल्शियम, एंड एनीथिंग विच इज़ रिच इन कैल्शियम शुड बी डिस्करेज. देन पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट कैन ऑल्सो बी फीलिंग कॉन्स्टिपेशन, सो उसके लिए फाइबर रिच डाइट, या फिर पेशेंट शुड टेक बल्क इन डाइट टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन. सो कन्फ्यूजन या मेंटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है. वी शुड बी टेलिंग पेशेंट अबाउट इट, कि पेशेंट को अचानक से अगर ऐसा कुछ होता है तो पेशेंट परेशान ना हो कि मतलब व्हाट दिस हैपेंड विद मी, व्हाई एम आई नॉट एबल टू मेमोराइज, व्हाई एम आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एम आई गोइंग क्रेजी और समथिंग. सो पेशेंट को हमें बताना है कि दीज सिम्टम्स आर कॉमन, एंड पेशेंट शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिज ओन कंडीशन. ओके, पेशेंट शुड बी टोल्ड प्रॉपरली. देन बोन्स हमारे बहुत इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं. इस केस में क्यों बोन्स इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं? बिकॉज इन दिस कंडीशन व्हाट इज हैपनिंग, कैल्शियम बहुत ज़्यादा है. जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो मतलब बोन्स में भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम पहुंच रहा है. जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहेगा तो जो बोन का रिजॉर्प्शन है दैट विल अकर वेरी एक्सेसिवली. बोन के एक्सेसिव रिजॉर्प्शन की वजह से जो बोन स्ट्रक्चर्स होंगे वो वीक हो जाएंगे. ओके, सो बोन रिजॉर्प्शन क्या होता है बेटा, ये आप बोन फॉर्मेशन अभी पढ़ोगे, जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ोगे तो आप उसमें ये चीज़ पढ़ोगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू विल स्टडी. वैसे आई एम श्योर कि आप पढ़ चुके होंगे. ओके,
सो बोन रिजॉर्प्शन हमारा बहुत जल्दी जल्दी होगा, जिसकी वजह से अगेन बोन रिजॉर्प्शन की वजह से अगेन जो बोन्स हैं वो बहुत वीक रहेंगे, फ्रेजाइल रहेगा और बार बार फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है क्योंकि पेशेंट को, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। वॉट एवर इज नीडेड फॉर सच एन एमरजेंसी सिचुएशन, ऑल दैट शुड बी मेड रेडी टू यूज। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज नाउ I already have told you all the things. I guess I already have covered all the things. पेशेंट को मोबिलाइज करना है। पेशेंट अगर मोबिलाइज नहीं हो सकता है, पेशेंट चल फिर नहीं सकता है बहुत ज़्यादा, तो पेशेंट को एटलीस्ट सिटिंग पोजीशन में भी रखना है। पेशेंट का हेड एलिवेट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन फॉर द पेशेंट इफ पेशेंट कैन नॉट बी मोबिलाइज। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट के लिए करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपर कैल्सीमिया। सो काफ़ी चीज़ें अभी हम कवर कर चुके हैं, and I think this much is enough for today. Rest I will be teaching in the next class, and so yeah, thank you class.